Hello friends and students, welcome back to my channel. My name is Khushbu Chen and Vedic Maths Mastery it's my channel name. So in the today's video, we'll basically learn on the screen you can see when the base is not a power of 10. So when the base is not a power of 10, what is the basic method? See, as I told you, there is only one step we have to add and this method will complete. So when the base is not a power of 10, as I told you already in the last some videos, as I told you, you can see we have seen so many situations in which we have base method used. So we took numbers as you can see above the base, below the base, and so many methods we have already learned. So this is the fourth method. On the screen you can see when the base is not a power of 10. So in this basically while we are taking only powers of 10, namely 100, thousands, we have already learned, but in this section basically in this video we'll basically take a number when the base is basically you can say there is a working base where the 40, 60, 500, 250 as well. So in this video basically when the digit is not nearer to your base, when already have learned the basis is 10, 100 and 1000, if the digits are not basically nearer to 10 or 100 or 1000, so what will you do? See, the question is 48. So the question is 48 is not nearest to 10, it's not nearest to 100 and it's not near to 1000. So what will you do in this case? There is only one step we have to add in this method and we'll get the answer in just a one line. See, the Vedic maths will give you the accuracy, save your time and give you the power. Basically, you can calculate so many long questions at the same time through the Vedic maths tricks. This is the only Vedic maths which we can calculate so many long questions. Only Vedic maths, because calculator is also failed in front of Vedic maths. As you all know that if you calculate so many long questions, the calculator will not give you the answer, but the Vedic maths give you the answer. You can basically take so many long question and will get the answer. So just move on to question how basically it works. So just give you one more example as well. So in this problem basically we'll basically follow two bases. Okay, जनरली भी हम एक ही बेस लेते हैं, बट यहाँ पर हम दो बेसिस किस तरीके से लेकर चलेंगे, एक चीज़ आप ये समझ लीजिए. इट विल गिव यू क्लैरिटी दैट हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चन. सी द एक्चुअल बेस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सी एक्चुअल बेस हमें पता है हम 10, 100, 1000 जैसे लेते हैं, बट द वर्किंग बेस इज लाइक दिस. जैसे हमारे को नियरेस्ट 40 के कोई नंबर दिया हुआ है, 60 के नियरेस्ट नंबर दिया हुआ है, 250 के नियरेस्ट दिया हुआ है. सो उस केस में क्या करेंगे, तो वो वर्किंग बेस है हमारा, जो हम क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो बेसिकली आपको एक इसके अंदर बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो आपको भी मैं क्वेश्चन के अंत में बताऊंगी. एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन you will see the magic. You will amazed that the one question there is a 48 by 48. I will solve this question by the two methods, means the base method same method से, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन को डिवाइड करके भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी. कैसे, मैं आपको स्क्रीन पे बताती हूँ. सी, आप जनरली एक बात बताएं, जैसे आपको कोई भी एक डिजिट दी होती है, जब आपको 100 के नियरेस्ट निकालना है, कोई भी नंबर 100 के नियरेस्ट है, 94 है, आपको पता है कि वो बिलो द बेस है, आप इजीली उस क्वेश्चन को निकाल लेते हैं. अगर वो 100 के अबव है, 105, दिस इज द अबव द बेस, यू कैन ईजिली गेट द आंसर. And we have already learned if the one digit is below the base and one digit is above the base, so how can we get the answer? ये भी आप ऑलरेडी समझ चुके हैं. अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको 100 दिया हुआ है, ठीक है, और आपका बेसिकली जो बेस है वो है 50. सो व्हाट विल यू डू, आप इसको 100 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर आप 100 को 2 से डिवाइड करते हैं देन यू विल गेट योर वर्किंग बेस 50, जो आपका वर्किंग बेस है इस समय, जो इस पर आप काम कर रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो बेस है वो 50 है, तो आपका निकल जाएगा. अब किस तरीके से वो एक स्टेप आपको ऐड करना है इस क्वेश्चन के अंदर आंसर निकालते टाइम, वो मैं आपको भी बताऊंगी. तो अब आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को
सेम इसी क्वेश्चन को मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी बताऊंगी, बट पहले हम डिवाइड का एक फटाफट से क्वेश्चन सीखते हैं एंड देन विल जस्ट लर्न कि मल्टीप्लाई करके भी सेम ट्रिक से, सेम मेथड से सेम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो जस्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन एंड जस्ट राइट द आंसर। सो सी, आप किसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप एक्चुअल बेस लिख लीजिए। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल बेस आपका यहाँ पर 100 है, तो देयर इज अ एक्चुअल बेस इज 100, सो देयर इज अ टू zeros, so you have to put 2 dashes अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल बेस। आपको एक्चुअल बेस आपका मेन बेस है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही डैशेज रखने हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वर्किंग बेस आपका यहाँ पर 50 है। एज यू कैन सी 48 बेसिकली 50 के नियरेस्ट है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली आपको यहाँ लिखना है 48 इंटू 48 एंड द बेस इज बेसिकली आप यहाँ ले लीजिए 50। ओके, बेस आपका वर्किंग बेस तो 50 है, बट आपका एक्चुअल बेस तो था, तो 2 zeros 2 डैशेज हम यहाँ पर पुट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अकॉर्डिंग टू द बेस मेथड। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी और आपको पता है बेस मेथड का, तो सिंपली आपको क्या करना है, फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिकॉज दिस इज द बिलो द बेस। So what we have to do is we have to basically put minus -2 and -2. Okay, -2 and -2. The next step is you have to basically vertically you have to multiply two differences. जो आपके ये दो डिफरेंस है आपको vertically multiply करने। Simply minus minus plus and 2 into 2 4. So 4 is only one digit. We have to full two digits. So just put 0 and make balance 0 4. So we'll have filled with two digits 0 4. So now I just take partition and now you can see right hand side is already have completed. Now just move on to left hand side part. So in the left hand side part what we have to do is just we have to cross subtracted। 48 में से आप -2 को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर यहाँ पर नीचे वाली डिजिट 48 ना देखिए कोई और डिजिट दी होती तो भी आप इसको यहाँ क्रॉस में माइनस कर लेते, और जो भी आप सब्ट्रैक्ट करते इन बोथ दी केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। क्योंकि यहाँ पे अभी इस समय सेम डिजिट है, तो आपको सिंपली क्या करना है, माइनस करना है कोई भी डिजिट से, तो आपका सेम ही आंसर आएगा 46। Now this is the same method which we have already learned with the base method. Now what we have to do is 46 को अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग बेस आपको सिंपली यहाँ पर डिवाइड बाय 2 करना है। तो मैं यहाँ पर इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देती हूँ। अगर मैं 46 को यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँगी तो आई विल गेट 23। सो 23 and 0 4 we have already done. So this is the right answer. We have got it. We have got the answer 2304, 2304. We got the answer. As simple as that, so easily we get the answer. Even so many students I have seen, even already basically preparing for competitive exam, I have seen so many students that they are basically confused sometimes when they calculating the these digits 48 into 48. So they confuse sometimes in the table of 8 and they got stuck sometime and they did so many calculations mistake. But this time there is no need to you have to basically learn or you have to basically read out in your mind the table of 8. There is no need. Simply you just apply this trick and get the answer in just one line. So this is the magic. Now I am just telling you how the second method simply you can get the answer. Okay, so I just rub it out. No, I just give you the answer on the same screen. See, I just put a part on it and just see the example. See 48 and 48. सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर मैं आपका यहाँ पर जो बेस है वो 10 लेकर चलूँ, सम टाइम अगर आपके माइंड में नहीं आता कि 48 जो है ना 50 के नियरेस्ट, अगर आपको लगता है कि ये तो 10 के नियरेस्ट भी हो सकता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। सी
आपका मेन बेस यहाँ पर जो है वो जैसे आपका 50 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 50 के नियरेस्ट है वैसे ये, तो आप अगर 10 को इंटू 5 करते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू, 10 इंटू 5 विल बिकम 50, एज सिंपल एज दैट। आपको ये वाली बात पता है कि 10 इंटू मैं अगर 5 करती हूँ तो मुझे 50 मिलता है। तो आपका जो यहाँ पर एक्चुअल बेस होगा वो आपका 10 होगा, ओके। एंड द वर्किंग बेस आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 5, सो यू विल गेट 50, ओके। अब यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है आपके लिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो एक्चुअल बेस है वो आपका 10 है, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि ये 10 के नियरेस्ट भी हो सकता है, तो एक्चुअल बेस आपका 10 है। वर्किंग बेस जो आप यहाँ पर करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, वो 50 है। तो 50 बनाने के लिए आपने 10 का क्या किया था, जैसे आपने 100 डिवाइड बाई 2 किया था, तो यहाँ पर मैं 10 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 करूँ ताकि मेरा वर्किंग बेस जो 50 मैं मान के चल रही हूँ वो बन जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो, मैं ऊपर यहाँ पर जो एक्चुअल बेस आपका है वो आप यहाँ पर लेकर चलोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब एक्चुअल बेस जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 50 यहाँ पे जो आपका है, ठीक है। तो ये मैंने लेकर चला, जैसे आप यहाँ पे इसको पार्टीशन कर दीजिए, आपको पता लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने डिफरेंस निकाला -2 सिंपली आपने क्या करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आंसर आएगा 4। अब मेन बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए आपका जो एक्चुअल बेस था वो 10 था, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल बेस ही आप डैशेस लेते हैं, तो आपका एक्चुअल बेस यहाँ पे 10 में 0 1 है, तो आपको एक्चुअल बेस में यहाँ पे आपको एक ही डैश लेना है, विच इज़ ओनली 1। तो 2 इंटू 2 विल बी 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक डैश फिल करा है मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 सिंपली। अब मैं आ जाती हूँ उसके दूसरे पार्ट पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट पर। तो 48 में से -2 करूँगी, आई विल गेट 46, ओके। आई विल गेट सिंपली 46। अब 46 को मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई बाय 5। वहाँ मैंने डिवाइड बाय 2 किया था, क्योंकि मैंने एक्चुअल बेस को डिवाइड बाय 2 किया था तो मुझे 50 मिला था। यहाँ मेरा एक्चुअल बेस 10 है, 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से कि 50 वर्किंग बेस बन गया। सिंपली मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट विल आई गेट टू, आई विल जस्ट गेट द आंसर 230, और ऑलरेडी 4 था। सी द सेम आंसर आई गॉट इट। In both the cases we got the same answer. तो you don't have to be confused कि मैं 50 लूँ तो ही होगा, 10 लेती हूँ तो नहीं होगा। तो इन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई या तो आप 10 लो, या आप 50 लो, या आप 100 लो, whatever, आपका आंसर निकलना है, आपका आंसर हर तरीके से निकलना है, ठीक है। तो ये बेसिकली देखो, आप एक ट्रिक में आपको बेसिकली हर एक छोटी से छोटा स्टेप क्लियर हो गया कि आप किस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो रेगुलर मैथ्स है उसमें जो इंटरमीडिएटरी स्टेप्स आप करते हैं कैलकुलेशंस, उससे भी आपको बेनिफिट हो गया। तो देर आर सो मैनी क्वेश्चंस, मोर एग्जांपल्स विल डेफिनेटली डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, बट अब तक के लिए जो ये आपको सिखाया गया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस आपको कोई क्वेरी पूछना चाहता है तो यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, और अगर आप चाहते हैं इस चैनल पे आपको बहुत सारे वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स देखने को मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो टिल देन, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।